આ દ્રશ્યો સીમા અને સચિનના ઘરના છે, જ્યાં હર ઘર તિરંગા અભિયાન હેઠળ પાકિસ્તાનથી આવેલી સીમા હૈદરે તિરંગો ઝંડો લહેરાવ્યો. તિરંગો લહેરાવ્યા બાદ સીમા ભારતની ભક્તિમાં લીન જોવા મળી. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. તિરંગો લહેરાવાની સાથે જ સીમાએ એ પણ સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો કે તેણે ન માત્ર સચિનને અપનાવ્યો છે, પરંતુ દેશને પણ અપનાવી લીધો છે. હવે તે ભારતને જ પોતાનો દેશ માને છે અને હિન્દુસ્તાનમાં જ રહેવાનો ઈરાદો છે. बिल्कुल लगाया है. मैं भारतीय हूँ और मैं लगाऊंगी हमेशा सारी जिंदगी. अब आगे सर से बात कर लें. तो आज आप भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं. बिल्कुल अब भी बोलूंगी. भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद. સીમાએ ફિલ્મ સાઇન કરવાના દાવા પર પૂર્ણ વિરામ લગાવી દીધો. સીમાએ કહ્યું કે તેમણે કોઈ ફિલ્મ સાઇન નથી કરી અને ફિલ્મમાં કામ પણ નથી કરવાની. આ પ્રકારના તમામ દાવા ખોટા છે. સીમાએ આરોપ લગાવ્યો કે આ મામલે તેની સાથે દગો થયો છે. मैंने कोई साइन करा है ना, मैंने फिल्म के लिए हामी भरी. उन्होंने थोड़ी वीडियो बनाने के लिए उन्होंने सर का नाम लिया, एपी सर का नाम लिया, तभी मैंने उतनी सी उनके कहने पे वीडियो बनवाई. और दूसरी बात, जब वो चले गए तो मैंने सर से बात करी. मैंने कहा आपने भेजा था अमित जानी को, तो इनको पता ही नहीं थी. तो उस मतलब धोखे से वो आए थे, क्योंकि उनको मैं जानती तक नहीं थी. मुझे ये भी पता नहीं उन्होंने कितनी फिल्में बनाई थी या नहीं बनाई थी. इस बारे में मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं. ભલે સીમા પર બની રહેલી ફિલ્મમાં તેની કોઈ ભૂમિકા ન હોય, પરંતુ ફિલ્મ બનવાનું શરૂ થઈ ગયું છે અને આ હકીકત છે, જેના પર વિવાદ પણ શરૂ થઈ ગયો છે. પાકિસ્તાનથી આવેલી સીમા હૈદરની ફિલ્મને લઈને બખાડો શરૂ થઈ ગયો છે. ભલે સીમા પારથી આવેલી સીમાની સિનેમામાં એન્ટ્રી નથી થઈ, પરંતુ તેની કહાનીને ફિલ્મી પડદે કંડારવાનું કામ શરૂ કરી દેવાયું છે. ફિલ્મનું શૂટિંગ પણ શરૂ થતાની સાથે જ વિવાદ સર્જાયો છે. યાદ કરું, સીમા હૈદર જ્યારે નેપાળના માર્ગે ભારતમાં ઘૂસી હતી તો સીમા હૈદરે પોતાને શકીના ગણાવી હતી. હવે સીમા હૈદર અને સચિનની આ પબજી પ્રેમ કહાની પર કરાચી ટુ નોઈડા નામની ફિલ્મ બનવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. ફિલ્મના શૂટિંગની પહેલી તસવીર પણ સામે આવી ચૂકી છે. આ તસવીરમાં સીમા હૈદરનો રોલ ભજવી રહેલી અભિનેત્રી બાળકો સાથે બોર્ડર પર ઊભેલી જોવા મળી રહી છે. ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર અમિત જાનીએ ગુલામ હૈદરને પણ ફિલ્મની કહાની પર ચર્ચા માટે આમંત્રણ આપ્યું છે. દાવો કરાઈ રહ્યો છે કે ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર રાઇટરને પણ સઉદી અરબ મોકલી શકે છે, જ્યાં તેને ગુલામ હૈદરની વધુ સારી માહિતી મળી શકે છે. की फिल्म यूपी में बन रही है, प्रोडक्शन हाउस यूपी में है, प्रोड्यूसर यूपी का, डायरेक्टर यूपी का, कलाकार यूपी का, शूट होगी यूपी में, सेट बनेगा यूपी में. જોકે સીમા હૈદર પર બની રહેલી ફિલ્મને લઈને વિવાદનો મતકૂળો છંછેડાયો છે. ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર અમિત જાનીએ આરોપ લગાવ્યો કે રાજ ઠાકરે પાર્ટી મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેનાએ તેઓને ધમકી આપી છે, પરંતુ તેઓ ડરવાના નથી. तमाम लोग सोच रहे थे हम बनाए, ले गए जानी साहब. इस बात की चिंता है, इसी बात की जो है, सिर्फ इसी बात की जो है पीड़ा है. रही बात धड़क फड़क की कि धड़क होगा, हमला होगा, हमलों से हम नहीं डरते हैं. અમિત જાનીએ એલાન કર્યું કે તેઓ મુંબઈમાં જ ફિલ્મનું શૂટિંગ કરશે, કોઈનાથી ડરવાના નથી. જાનીના દાવા પ્રમાણે ફિલ્મમાં ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારના કલાકારોની પસંદગી કરવાના કારણે રાજ ઠાકરેની પાર્ટી નારાજ છે. આપણે જણાવી દઈએ કે અગાઉ સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા અભિષેક સોમ દ્વારા સીમા હૈદર અને અમિત જાનીને પાકિસ્તાન જતા રહેવા ધમકી અપાઈ હતી અને તેના માટે ફ્લાઇટની ટિકિટ પણ મોકલી આપી હતી. तो तमाम तरह की बात चर्चाएं अब सीमा हैदर को लेकर के हो रही है. सीमा हैदर ने जिस तरह से तिरंगा फहराया है, वो बार बार यही गुजारिश कर रही है कि भारत की नागरिकता उसे मिले और दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह सीमा को भी सचिन के साथ रहने का पूरा मौका दिया जाए. कई लोग हैं जो लगातार यहाँ सीमा हैदर से भी मिलने के लिए आ रहे हैं इस गली में. आप भी लगता है सीमा हैदर से मिलने आए? हाँ जी. जी कहाँ से आए आप? जिला शामली, गांव एल्लम. क्या नाम है आपका? योगिंदर सिंह जी. तो क्या सोच करके पहुंचे थे यहाँ? यहाँ रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी में आ रहे थे. यहाँ को निकलने जा रहे थे, सोचा कि मकल सीमा इधर से मिल के चलेंगे. अच्छा. तो यहाँ गेट बंद है. उनसे बात की, सचिन के पिताजी से भी, कहना भी नहीं मिले जा सकता, कोई बात नहीं. तो ये ऐसे कई लोग हैं जो इसी तरह से सीमा हैदर से मिलने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है बहुत से ऐसे सवाल हैं
जिनका जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक के कई सवाल अनसुलझे। लेकिन इस बीच एक और बेहद अहम खबर आ रही है। खबर ये कि चर्चा इस बात की होने लगी कि अब सीमा हैदर भारत आई है और अब सचिन के साथ रह रही है, वो प्रेग्नेंट भी है। इस पर सवाल भी सीमा हैदर से पूछा गया। सीमा हैदर ने तो अपनी तरफ से इनकार किया है, लेकिन कुछ जवाब इस तरह से दिया कि बहुत उसके मतलब भी निकाले जा सकते हैं। और इस वक्त गुलाम हैदर हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। गुलाम हैदर, जिस तरीके से सीमा अब जो है वो यहाँ भारत की ही नागरिकता चाहती है अपने बच्चों के साथ, वो नहीं चाहती कि यहाँ से उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाए, किस तरह की आपकी अब तैयारी होगी? इस पर कोई रिएक्शन आपका? जी है मेरा उनका साथ, आपको उनका पता है, साथ दे रहे, साथ नहीं देना चाहिए। तमाम जो है भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूँ गुलाम, लेकिन सीमा लगातार ये बात कह रही है, आप भले ही ये दावा करते हैं कि आप उसके पति हैं, लेकिन वो कह रही है कि उसे एक पत्नी की तरह नहीं रखा गया। अब उसने अपनी जिंदगी का फैसला किया है, वो भारत में ही रहना चाहती है। क्या पाकिस्तान सरकार की तरफ से कहीं कोई उम्मीद है कि आपको इसमें मदद मिल रही है? कोई कदम आप इसको लेकर के उठा रहे हैं? नहीं, जरूर मदद मिलेगी और सीमा पाकिस्तान आएगा, उसको बुलाए जाएंगे जरूर। पाकिस्तानी है सीमा और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है। और ये जो कह रहा था कि सीमा ना हैदर मुझे अच्छे से नहीं रख रहा था, कैसे अच्छे से नहीं रख रहा था? उस बच्चों के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए तो मैं सऊदी अरब आया था। आप थोड़ा सा जानकारी ले और अच्छी तरीके से आगे पेश करे, ताकि तोड़ मोड़ करके मीडिया वाले भाई जो आगे लेके जाते हैं बात, हमारा असर पूछता नहीं है। आप हैदर सीमा से पूछ सकते हैं ना कि किस लिए आपने अच्छी तरीके से हैदर ने नहीं रखा। हैदर बच्चों के लिए सऊदी गया था, आपने फैसला किया था कि वो अच्छा सीखा सके, मेहनत मजदूरी के लिए गया था ना सऊदी, आपके कहने पे गया था। गुलाम, लेकिन ये तो आपका अपना दावा हुआ। सीमा जो कह रही है उनकी बात हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो भी हिंदुस्तान की पूरी आवाम सुन रही है। इसमें मीडिया अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि सीमा बार बार ये आरोप लगा रही है कि बच्चों का मुस्तकबिल उसका पाकिस्तान में नहीं है, उनके घर में वहां किसी की भी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, तो आखिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? ये बड़ा सवाल कर रही थी और इसीलिए उसने देखा कि उसका मुस्तकबिल अब यहाँ हिंदुस्तान में है, सचिन के पास है, और इसलिए उसने ये फैसला किया। ये सीमा का कहना है। शहनाज पब्लिक में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। सीमा कैसे कह रहे कि बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं है? सबल पासपोर्ट है, मैं उनका बाप हूँ, मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, रोके करता हूँ आप भाई बहनों से। सीमा झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान है, बच्चों का असली वारिस तुम है। सीमा के कहने पे कुछ नहीं होगा, जितना सीमा का हक है उससे ज्यादा मेरा हक है बच्चों के साथ। लेकिन गुलाम हैदर, जितनी बात आप कह रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है कि उसके उलट सीमा हैदर दावा कर रही हैं? आपकी बातों को वो नकारती हैं, इनकार करती हैं, वो कहती हैं कि गुलाम हैदर सच नहीं कह रहे हैं। सर सच कैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं जीता जागता सबूत हूँ। मैं हर प्लेटफॉर्म पे अपना जो है ना तस्दीक करवाया कि असल क्या है, माजरा क्या है। कि मैंने निकाह नामे से लेकर शादी मुतल्लिक तक, स्कूल तक, बच्चों का जो भी है। तो एक एपीसी बोल रहा है कि हैदर ने 4 सालों से सीमा को छोड़ा हुआ था। आप मेरी बात गौर से सुने, अगर 4 सालों से मैं तलाक देता अपनी घरवाली को, तो अपने माँ बाप के घर पे रहता ना। हमारे कबीले में ऐसा है, तो तलाक देता है तो वो अपने माँ बाप के घर पे चला जाता है। ये मेरे घर पे क्या कर रहा था? ये तो मेरे घर पे रह रहा था, बच्चों तो तालीम मैं कर रहा था। तो तलाक होता है तो अपने माँ बाप के घर चला जाता है या अपने शोहर के घर पे रहता है? मेरा आप भाई बहनों से ये सवाल है कि अब ये इस पर तो सीमा हैदर लगातार ये बात कहती रही है कि उसे अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी करके फैसले लेने का पूरा हक है, और उसके मुताबिक ही उसने ये फैसला किया कि अब उसे भारत में सचिन के साथ रहना है। इसी में बच्चों की भलाई है, उनकी अपनी जिंदगी की भलाई। लेकिन एक बड़ी बात ये गुलाम हैदर कि सीमा हैदर का पासपोर्ट पता चलता है कि 8 तारीख को तैयार होता है, 10 तारीख को वीजा लेकर, टिकट लेकर के वो पाकिस्तान से बाहर भी चली आती है। क्या आपको लगता है कि एक बड़ी तैयारी पहले से सीमा की रही होगी? ये तो देखो ना, इस वजह से बातों से लग रहा है इसका बहुत पुराना प्लानिंग है। ऐसे नहीं है कुछ 5-10 दिन में या 2 माह में इसने काम किया। ये तो बिल्कुल एक पूरा प्लानिंग के साथ आया। तो सजन जो भी काम किया, सजन
पूरा मुलविस है एक क्रिमिनल को एक गैर तरीके से मेरा घर भिजवा के मेरे बच्चों को लेकर आना, भारत में दाखिल करना, उसको तरीके रास्ता बताना, उनको आधार कार्ड हिंदुस्तान का आधार कार्ड दिलवाना, उनको रास्ता बताना। क्या सजन मुलविस नहीं है? सजन का बाप मुलविस नहीं है? इनको हुकूमत बख्शा जाएगा? ये भी जेल में जाएंगे। एक औरत को पाकिस्तानी को इन्होंने पैसा लेके सिर्फ पैसों की हवस के लिए इन्होंने मेरा घर बर्बाद किया। सजन को तो पैसा चाहिए था। मेरा घर जो 20 लाख का सीमा ने बेचा, 4 तोला जेवर लेकर आया, 3 लाख रुपए रकम मैंने दिया, तो इसने सिर्फ पैसा देखा, मेरा घर बर्बाद किया सजन ने, सजन के बाप ने, सजन के रिश्तेदारों ने। लेकिन ये जो एक आपका गुस्सा है जिसमें आप कह रहे हैं कि आप सब कुछ उनके लिए, बच्चों के लिए कर रहे थे, इसके बावजूद उसे छोड़कर वो भारत चली आई, ऐसी क्या वजह होगी? यही तो वजह हैरान वाली बात है। सब कुछ था, सीमा बोलता है, सीमा आजाद था, अपना अकेले में रह रहा था, सुकून से जी रहा था, कोई जबरदस्ती नहीं था, कोई मारपीट नहीं था, फिर भी ये आया। तो ये हैरान करने वाली बात है। इसका मकसद क्या है? ये किस लिए आया भारत में? इसका आगे का प्लान क्या है? ये तो सरकार जांच चल रहे तमाम। गुलाम हैदर, आप भी पाकिस्तान में उनके साथ पिछले कई वक्त से काम के सिलसिले में साथ नहीं रह पा रहे थे, दुबई में आपको रहना पड़ता था। ऐसे में डाउट ये रहा कि क्या ये आईएसआई के एजेंट हो सकती है, इसे लेकर तफ्तीश हुई। लेकिन सीमा के भाई पाकिस्तान की आर्मी में है, ये बात आपको पता है? क्या भाई आर्मी में, चाचू बड़े अफसर है आर्मी में, इस्लामाबाद में, पता नहीं लाहौर में, जो बड़े ओहदों पे रहते हैं। ये अपने चाचू के घर पे 15-15 दिन मलिर कैंट कराची में जाता था, 10 से 15 दिन वो आता था जाता था। इनके बच्चे आना जाना, चाचू के साथ लगाव ज्यादा थी, बच्चों के साथ आना जाना। लेकिन गुलाम, जिस तरीके से आपकी जानकारी है, मालूमात है, क्यों ऐसा? मैं एक आप भाई बहनों से सवाल कर रहा हूँ जी। एक क्लिप मैंने देखा, एपी सिंह जबरदस्ती बच्चों को नारे लगवा रहे, बच्चे छोटे हैं, मासूम हैं। मैं एपी सिंह को कहना चाहता हूँ, आप एक गलत हो सकते हो, एक सीमा गलत हो सकता है, एक शायद मैं गलत हो सकता हूँ। ये एक इंतजार फैला रहा है हिंदू और मुस्लिम भाइयों में, ये जो है ये लड़ाई झगड़ा पैदा करना चाहता है। मैं एपी को बोलता हूँ, अपने को पॉपुलर करने के लिए पराए मेरे हम अल्लाह पे एक हम तवक्कल करते हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते। मगर एपी सिंह का कहना मकसद ये है कि ये पाकिस्तान में भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाए और हिंदुस्तान में भी जो हिंदू और मुस्लिम का ये फसाद करवाना चाहता है। एपी सिंह को बोलता हूँ, आप ऐसी जिन्होंने हरकत ना करो, आप हमें लड़ाई मत करो, ये बहुत गलत करते जा रहा है। तो मैं आप भाई बहनों से कह रहा हूँ, ये कल जो इन्होंने हरकत इसमें किया, ये अच्छा किया। तमाम लोग मुझे सुन भी रहे हैं, इस धर्म के बारे में गलत कहना ये तो बिल्कुल गलत बात है ना सर, इसको करना चाहिए था। आपकी सीमा के भाई से, उनके परिवार के और जो लोग हैं, तकलीफ नहीं होगा, आप भाई उनसे बातचीत हो पाई है? गुलाम हैदर, किसने हक दिया? एपी सिंह को किसने हक दिया? बोलते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। हाँ, हमें तकलीफ हुआ। एक जो है ना, एक बिल्कुल एक बेगैरत इंसान है, इस पे हम शैतान किस्म का आदमी है, इसको नहीं करना चाहिए।